Welcome to 10th class students. There are some formula which complete cover all the mathematics topic. The first formula HCF into LCM which is equal to the product of the two number. Let two number x and y. So HCF of xy into LCM of xy is equal to two number product is equal to x into y. Let second formula, let a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. A pair of two linear equation. टू स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट होगा या को इंटरसेक्टिंग होगा और पैरेलल होगा, उसके लिए अलग अलग कंडीशन. फर्स्ट होता है कोइंसिडेंट. कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. जब ये कंडीशन होगा तो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होंगे एंड इसके पास कितना सोल्यूशन होगा, इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा. जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग करेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, a1 by a2 which is not equal to b1 by b2 which is also a consistent line and it has one solution. पैरेलल जब दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा उसके लिए कंडीशन a1 by a2 which is equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2. ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होंगे एंड इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. a1 क्या होता है, a1 होता है x का कोई वेरिएबल, b1 होता है y का कोएफिशिएंट, a1 होता है x का कोएफिशिएंट, b1 होता है y का कोएफिशिएंट, c1 होता है कांस्टेंट, a2 होता है x का अनदर लाइन का x का कोएफिशिएंट, b2 होता है अनदर लाइन का y का कोएफिशिएंट एंड c2 द कांस्टेंट. Let a quadratic polynomial f of x is equal to ax square plus bx plus c. Let alpha and beta are its two zeros. Then sum of zero formula क्या होता है, alpha plus beta is equal to minus b by a. b is equal to coefficient of x whereas a is the coefficient of x square. Second formula, product of zeros which is equal to alpha and beta which is equal to the c by a. What is c? c is the constant term and a क्या होता है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सपोज एक क्वेश्चन में अल्फा बीटा दो जीरो गिवन दिया हुआ तो उसके इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए कंडीशन क्या होगा, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो विच इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. नंबर 4 फॉर्मूला, let a quadratic polynomial f of x is equal to ax square plus bx plus c. Its zeros are either solved by two methods. One is discriminant method and second solved by splitting method. In discriminant method, its zeros are x is equal to minus b plus or minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. What is b? b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square and c is the constant term. So two zeros are, suppose one zero alpha is equal to minus b plus b square minus 4ac root over by 2a and other root beta is equal to minus b minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. Second five क्वेश्चन, नेचर ऑफ रूट. हमको बताए डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल कितना, b स्क्वायर माइनस 4ac. जब ये डिस्क्रिमिनेंट d जीरो होगा दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल जीरो होगा तो उस केस में बोथ द जीरोज आर क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा. सेकंड, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में बोथ द जीरोज क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट. थर्ड, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन जीरो होगा दैट मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो उस केस में बोथ द जीरोज आर नॉट रियल दैट मीन द रूट्स जीरोज आर इमेजिनरी. 6 number formula, AP related to AP. Arithmetic AP means arithmetic progression. Let a plus d a plus 2d a plus n minus 1d. That means there are n number of term which is in AP. So a is the first term term को मैंने t1 में लिखा, t1 is equal to a the first term, t2 which is equal to a plus d that means second term. Similarly likewise nth term कितना होगा, tn is equal to a plus n minus 1d. For AP there must be a common difference, that means common difference किस d हमेशा इक्वल होता है, d is equal to
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म which is equal to third term minus second term which is equal to nth term minus n minus 1 term. 7 term formula. If suppose nth term of the AP formula कितना होगा Tn is equal to a plus n minus 1 into t. 8 नंबर. सपोज तेरा 3 नंबर होता है ए के बी ए के सी एक नंबर 3 नंबर सपोज तीनों एपी में रहेगा. उसके लिए कंडीशन होगा मिडिल टर्म का 2 गुना दैट मीन 2b which is equal to दोनों एन टर्म कितना ए और सी दोनों का सम होगा. 9 नंबर फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म एपी एपी मीन्स जो ऊपर में लिखा हुआ मैंने ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1d. ये एन टर्म का सम कितना होगा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू सम को एस एन में लिखा होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 होल इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी. ए क्या होता है फर्स्ट टर्म एन होता है नंबर ऑफ टर्म एंड डी होता है कॉमन डिफरेंस. और एस एन का और एक सेकंड फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 होल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. 10 नंबर सपोज कोई एपी में सम दिया सपोज एस एन किस फॉर्म में दिया हुआ एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n इसी कुछ फॉर्म में दिया हुआ और क्वेश्चन में पूछा गया उसका पहला टर्म निकालिए सेकेंड टर्म निकालिए या फिर कॉमन डिफरेंस निकालिए या फिर कोई भी टर्म पूछेगा. तो उसके लिए फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1. दैट मीन एस एन क्या होता है सम ऑफ एन टर्म एस एन माइनस 1 होता है सम ऑफ एन माइनस 1 टर्म. जब एस एन से एस एन माइनस 1 माइनस करूँगा तो क्या निकलेगा टी एन आएगा. तो n जगह पे 1 पुट कर दूंगा टी एन में n जगह पे 1 पुट कर दूंगा क्या मिलेगा t1. सिमिलरली n जगह पे 2 पुट कर दूंगा क्या मिलेगा t2 मिलेगा. दैट मीन पहले क्या करेंगे एस एन से एस एन माइनस 1 को माइनस करिए जो फॉर्म आएगा वो आएगा टी एन आएगा. फिर टी एन जगह में वही n जगह पे 1 पुट करूँगा पहला टर्म आएगा n जगह पे 2 पुट करूँगा सेकेंड टर्म आएगा. तो d कॉमन डिफरेंस कितना होगा d होगा t2 माइनस t1. देखो ट्रिगोनोमेट्री में इसमें बहुत सारे रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा ये सब का फॉर्मूला है. एक राइट एंगल ट्रायंगल में पता है पाइथागोरस थ्योरम थीटा का जो सामने वाला साइड होगा वो हमेशा पी होगा और 90 डिग्री का सामने वाला साइड क्या होगा एच होगा और एच बेस वाला कितना बी होगा. हमेशा थीटा का सामने साइड पी होएगा. तो पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. एच इज द हाइपोटेन्यूज P the perpendicular and B the base. Sin theta is equal to P by H. Cos theta is equal to B by H. Tan theta which is equal to tan theta कितना होता है tan theta होता है sin theta by cos theta which is equal to कितना P by B. Cot theta which is equal to cos theta by sin theta उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद कितना हो जाएगा B by P. Sec theta which is equal to 1 by cos theta. Cos theta का वैल्यू मुझे पता है B by cos theta का वैल्यू पता है B by H. तो जगह पे पुट करूँगा तो कितना होगा एच बाई बी हो जाएगा. कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल पी बाई एच. तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा एच बाई पी. 11 नंबर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट देखो ले टेबल का याद करने के लिए पहले लिख दीजिए 0 30 45 60 90. साइन थीटा का फैंस वैल्यू में याद करिए साइन 0 कितना 0 साइन 30 1 बाई 2 साइन 45 कितना 1 बाई रूट 2 साइन 60 रूट 3 बाई 2 साइन 90 1. उसके बाद कोसेक कॉस थीटा जब कैलकुलेशन करना है तो उसको रिवर्स कर दीजिए. दैट मीन जो साइन थीटा का जो साइन 90 होगा वो कॉस का 0 होगा. कॉस 0 1 देखो कॉस 30 मतलब साइन का जो 60 होगा कितना 2 बाई रूट 3 बाई 2. कॉस 45 साइन का जो 45 1 बाई रूट 2 वही वो 1 बाई रूट 2 रहेगा. कॉस 60 क्या होगा साइन का जो 30 होता है वो कॉस का 60 होगा 1 बाई 2 और कॉस 90 कितना 0 होगा. टैन कितना होगा टैन इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा 0 बाई 1 कितना 0 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3. उसके बाद सिमिलरली टैन 45 इज इक्वल टू 1 बाई टैन साइन 45 कितना 1 बाई रूट 2 कॉस 45 1 बाई रूट 2 डिवाइड करने कितना 1 होगा. टैन 60 कितना होगा साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2
cos 60 कितना 1/2, √3/2 डिवाइडेड 1/2 इज इक्वल टू √3, tan 90 इज इक्वल नॉट डिफाइन। सिमिलरली cot थीटा कैसे करना है, 1/tan कर दीजिए, cot 0 1/tan 0 इज इक्वल टू 1/0 नॉट डिफाइन। cot 30 कितना होगा 1/tan 30 इज इक्वल टू √3। सिमिलरली इस सारी टेबल को ऐसे बना दीजिए। नेक्स्ट रिमेनिंग फार्मूला अगले वीडियो में भेजूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।